सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپا جان قاضی یاسر اتاری بات کر رہا ہوں۔ اگر گھر میں جھگڑا چل رہا ہو والدہ اور والد کا، تو بالآخر تھک کر اولاد کو کس کا ساتھ دینا چاہیے، والد کا یا والدہ کا؟ اولاد کو تو نیوٹرل رہنے میں عافیت ہے، ان کے آپس کا مسئلہ ہے۔ ہاں اگر ایک فریق واقعی ظلم کر رہا اور اتنی شدبود ہو کہ واقعی ظلم ہو رہا ہو، چونکہ دونوں آپ کے لیے واجب الاحترام ہے، تو مظلوم کا نرمی سے یوں ساتھ دیں کہ وہ اگلے کو سمجھائے، مار دھاڑ نہیں کر رہی ہے، چیخم چاخ نہیں کر رہی ہے، محبت سے پیار سے صلح کی ترکیب کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام محسن رضا ہے۔ بابا جان آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ محشر کا میدان کس زمین پہ لگے گا؟ بہار شریعت میں ملک شام کا لکھا ہے، سرزمین شام۔ جزاک اللہ خیر۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، دو دوستوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو ایک نے دوسرے کو بولا کہ اب عمر بھر مجھ سے بات نہیں کرنا، اور میں مر جاؤں تو تمہیں میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح بھی بولا کہ سب کچھ دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت ہے، تمہیں نہیں۔ اس طرح کی وصیت کرنا کیسا؟ حماقت ہے، اور یہ پھر بھی اس کے جنازے میں جانا چاہیے۔ جب وہ کیفر کردار کو پہنچ گئے یا اپنے انجام کو پہنچ گئے، اب تو یہ پچھتا ہی رہے ہوں گے کہ میں نے کیوں روکا۔ تو یہ طریقہ تو بالکل یہ ہے عوام میں ہے۔ ماں باپ بھی غصے میں آتے ہیں تو میرے جنازے میں مت آنا، میرا جنازہ اٹھے، اور اس طرح کی وہ پٹے کھاتے ہیں کوسنے اپنے اوپر، یہ نہیں بالکل مناسب، یہ غلط ہے۔ بعض اوقات تو فریاد ٹائپ کی کھا لیتے ہیں کوسنے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اس طرح جو بھی کہتا ہے وہ ایسا نہ کرے، بلکہ ریکویسٹ کرے کہ یار بھلے اپنی ناراضی ہے اللہ کرے دور ہو جائے، مگر مجھے کچھ ہو جائے تو آنا ضرور، یہ کرنا چاہیے۔ میری مغفرت کی دعا تو ابھی سے شروع کر دو۔ محمد اشفاق اتاری، کینیڈا، فیضان زمزم۔ میرا یہ سوال ہے باپا جی کہ جو قصر نماز ہے اس میں موقدہ سنتیں پڑھنی چاہیے؟ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اگر روا روی یعنی کہ بھاگم بھاگ جیسے ہوتی ہے، گاڑی چھوٹ جائے گی اور قافلہ بچھڑ جائے گا، بھاگم بھاگ ہو تو چھوڑ سکتا ہے، سنت الموقدہ نہ پڑھے اگر یہ مجبوری ہے تو، ورنہ پوری پڑھے، قصر اس میں نہیں ہے۔ پاک ترمذی کبینہ صدیقی کبینات۔ پیارے باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر سورت سوچی ہوئی ہے کہ میں نے نماز کے اندر پہلی سورت پڑھنی ہے سورہ فلق، تو اب میں نے پڑھ دی سورہ والناس ہے، تو اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟ پڑھ لی ٹھیک ہے، پڑھ لی، دوسری میں بھی سورہ ناس پڑھ لیجیے۔ پیارے مرشد کریم آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی پر بہت ظلم کرتے ہیں اور مارتے ہیں،
और ये कहते हैं कि हदीस मुबारक में जो है शोहर के बहुत ज़्यादा फज़ाइल बयान हुए हैं, तो क्या बीवी के भी कोई हुकूक हैं वो बयान? मियाँ बीवी दोनों के अपने अपने हुकूक बयान किए गए हैं और डोर की तरह मारते हैं बाज़ लोग, यानी जुल्म करते हैं, बिला वजह गुस्सा करते हैं, हाँ वो जुल्म करते हैं, बहुत मारते हैं, पीटते हैं। फिर वो फज़ाइल अपने खुद ही बयान करते हैं कि हदीस में इस तरह बयान हुआ। तो हदीस में ये कब कहा कि तुम्हारी बीवी, पिटाई करो? वो कहते हैं बीवियों के कहाँ हुकूक बयान हुए आप? ये कोई जाहिल होगा जो सब कहता होगा। तो उनको क्या कहा जाए, वो जवाब क्या? मियाँ बीवी के हुकूक का अपना रिसाला तो है, हुकूक का रिसाला, उसमें से पढ़ा दो उसको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जान, एक सवाल करना था कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो इस वक्त हयात हैं और जन्नत में हैं, तो उनके हयात का जो ये वाक़या मशहूर है और वो जो एक तवील वाक़या मशहूर है उनकी जो वफ़ात का और उसके बाद ज़िंदगी का, फिर जन्नत में जाने का, तो ये इसराइलियात में से है या ये सही वाक़या है? और अगर वो हयात हैं तो जो आयत मुबारक है कि हर चीज़ जो है वो हलाक हो जाएगी सिवाय ज़ात बारी ताला के, तो क्या इस आयत के पेश नज़र अगर वो ज़िंदा हैं तो क्या उस वक़्त उनको वफ़ात दोबारा होगी? लफ्ज़ हलाक तो नहीं हर चीज़ के लिए, फना। फना। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम भी, इलियास अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, तो ये चार अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदे हयात है, ज़ाहिरी वफ़ात इनको पेश नहीं आई। ये हिकायत मलफूज़ात आला हज़रत में मौजूद है, आएगी सबको वफ़ात। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ज़ाहिरी वफ़ात पेश नहीं आई, लेकिन अभी नुज़ूल भी होगा इनका, आखिरकार वफ़ात भी पेश आएगी। और सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े पुरनवार में ही एक जगह अभी मौजूद है इनके लिए, वहाँ आप आराम फरमाओगे, मज़ार शरीफ अंदर बनेगा। तो यूँ मतलब सबको वफ़ात तो होगी, खिज़र अलैहिस्सलाम भी, इलियास अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम। पापा, अगर कोई शख्स ऐसे कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिशात तो अल्लाह भी पूरी नहीं कर सकता, उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा और क्या करना चाहिए? ये तो काफिर हो जाएगा, अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार कर रहा है कि वो नहीं कर सकता। अल्लाह को आजिज माना, बेबस माना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उसको तौबा और तजदीद ईमान करना होगा। निकाह किया हुआ था तो निकाह भी दोबारा करे, किसी का मुरीद था तो दोबारा, हज कर चुका था तो अब दोबारा साहिब इस्तिताअत होगा, हज दोबारा फर्ज होगा उस पर। पहले के सारे अमल बातिल हो जाते हैं जब मुर्तद हो जाए, तो ये सरी कुफ्र ज़ाहिर है कि अगर अल्लाह को ये बेबस ही कह रहा है, अल्लाह बेबस है तो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तो ईमान चला गया, सारे अमल बर्बाद हो गए। सांस बाद में लेनी चाहिए, फौरन तौबा करनी चाहिए इस कुफ्र से, कलमा पढ़ के नए सिरे से इस्लाम में दाखिल हो। एक क्वेश्चन है, ये है कि क्या दावत इस्लामी गरीबों की जमात है? अगर गरीबों की जमात है तो मेरा अभी कुछ माह पहले एक दोस्त आए थे पंजाब से, तो 3 दिन यहाँ पे आए थे, तो बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के आए थे, उनकी मुलाकात आपसे नहीं हो पाई। क्या करना चाहिए आप बताइए, आपको क्या आपने सुना है एक अनार 100 बीमार सुना है? ये सुना नहीं, एक अनार 100 बीमार, बहुत पुरानी कहावत है। अब ये कि हर आदमी चाहे कि मैं मुलाकात करूं, मदनी मुन्ने भी चाहते हैं कि हम मिलेंगे। अब आप बताइए कि एक आदमी क्या करे, किससे मिले, आप बताइए मैं क्या करूं। अब कोई इस तरह जिद करे तो मैं क्या कर सकता? मुश्किलों से वक्त निकाल के आए थे। तो ये तो मुझे तो अभी आपने बताया ना, अब मैं तो उसको जानता ही नहीं ना, तो ऐसे तो कितने आते होंगे, मैं क्या करूं? आप बताइए मेरा क्या कसूर है? मैं मतलब क्या सड़क पे बैठ जाऊं, आवाम में हर वक्त बैठा रहूं, न खाऊं न पीऊं न सोऊं न जागूं, मिलता रहूं सबसे? अब जो लाखों लाख इस्लामी भाई दावत इस्लामी में, और ऐसा कौन होगा जो मिलना नहीं चाहता होगा? अब ये कौन कौन मिलना नहीं चाहता मेरे से?
ہے نا, یہ سب ملنا چاہتے ہیں نا. اچھا, اگر یہی اعلان میں فیضان مدینہ میں جو مدنی مذاکرہ میں کرتا, جو ان سے شاید بہت زیادہ تھے, وہ بھی کہتے ہم ملنا چاہتے ہیں. اب بتائیے میں کیا کروں؟ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ مدینے. جنہوں نے منع کیا نا, نہیں تو ان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے میری ملاقات کروانا. ان میں ایک بھی نہیں ہے جن کے ہاتھ میں میری ملاقات کروانا ہے. یہ حقیقت بولتا ہوں, کسی کو میں نے یہ سونپا نہیں ہے کہ بھائی تم جس کو چاہو لے آؤ. یہ اپنا سسٹم ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے, یہ ظاہر مجبوری, اور بھی کام ہوتے ہیں نا. میرا نام سید رؤف علی اتاری ہے. میرا یہ سوال ہے بابا جانی, میں نے مدنی چینل پہ سنا تھا کہ کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس کے کان کے قریب جا کر اذان دے دی جائے. بہار شریعت میں مرگی والے کے کان میں اذان دینے کا لکھا ہے, مستحبات میں اس کو ذکر کیا. بیمار عابد اس میں بھی ہے, بہار شریعت کے تیسرے حصے میں اذان کا بیان ہے. محمد عرفان اتاری جامعۃ المدینہ فیضان عطار. پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ جو قبرستان میت کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں قبروں کے اوپر جو اسلام بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو منع کیسے کیا جائے اور یہ کرنا کیسے؟ منع کیسے کیا جائے؟ سوال کیسے کیا آپ نے؟ زبان سے کیا, اب منع ہاتھ سے کریں گے تو وہ موقع کی مناسبت سے آپ سمجھائیں. اگر آپ کو یہ حدیثیں یاد ہیں, مسئلے یاد ہیں, ورنہ وہ 25 قبروں کی حکایات اس میں یہ موجود نہیں ہے مسائل, تو جب بھی قبرستان جانے کا اتفاق ہو تو وہ رسالہ ساتھ میں رکھ لیں, کوئی 20-30 رسالے لے لیں ساتھ, تو دکھا کر کے یہ دیکھو یہ مسئلہ لکھا ہے, آپ مزید پڑھ لیجئے, وہاں تقسیم رسائل کر دیں اگر پیسے ہیں تو آپ کے پاس, ورنہ ایک رکھ لیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اسی حصے کو فوٹو کاپی کر لیں, اتنے حصے کی اس کو سمجھائیں, فوٹو کاپی دکھا دیں تو یہ لکھا ہے کہ آپ لے جائیں, اس کو دے دیں تحفے میں, یوں کر لیں. سمجھانے کے مختلف طریقے, لیکن یہ ہر کام میں ہر معاملے میں آپ کو کرنی نرمی ہوگی. اگلا دلیل جو دے گا نا وہ یہ ہوگی کہیں جگہ نہیں ہے, کہاں کھڑے ہیں, سب کھڑے ہیں, ہم کیا کریں, اس طرح کی باتیں وہ کرے گا, تو اس لیے وہ آپ کو کرنی ہوگی نرمی. یہ امکان ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں, لوگ کرتے ہیں اس طرح, جیسے یہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی کریں, تو سب نماز نہیں پڑھتے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. جو حکم شریعت ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے, پیار محبت سے سمجھانا ہوگا, انشاءاللہ سمجھیں گے انشاءاللہ. اگر زیادہ ہمت ہے آپ میں, وہی رسالہ پکڑ کے جب یہ تدفین ہو آپ درس دینا شروع کر دیں, قبر سے بچ کر درس دیتے رہتے, یہ بھی پڑھ کے سنا دیں, دیکھو یہ لکھا ہے, تو انشاءاللہ بہت سو تک پیغام ہو جائے گا, پہنچ جائے. نہیں بھی ہٹیں گے تو ٹھیک ہے, مطلب پیغام آپ نے پہنچا دیا, زبردستی ہٹانا تو آپ کی ذمہ داری نہیں. میرا نام محمد سہیل ندیم چشتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز ادا کی جائے تو کیسا ہے؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا, اگر اس وجہ سے نماز میں دل لگتا ہے, جی, خشوع اور خضوع آتا ہے, جی, تو افضل ہے. جی. اور اگر ایسے ہی نارمل رہتے ہیں, آنکھیں بند کرنے سے بھی خشوع نہیں, تو مکروہ تنزیہ ہے, بہتر نہیں ہے. دھیان بھٹکنے کی وجہ سے اگر نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی وجہ سے بند کرتا آنکھیں تو صحیح ہے. بابا جانی محمد بابر شاہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. بولا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا مکان پہ گئے, تو اس سے کیا مراد ہے, تشریف فرما دیں. لا مکان نہیں مکان, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. خیرت مانے عقل, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, یعنی عقل کو بولو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چپ چاپ چپ ہو جا, سر جھکا لے, تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. پڑھے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, جہت مانے سمت, ڈائریکشن. یہاں سمت بھی ختم ہو گئی ہے کہ دائیں کہیں تو بھی سمت, بائیں, اوپر, نیچے, یہ سب سمتیں کہلاتی ہیں, تو سمت بھی نہیں ہے. خیرت سے کہہ لو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے. اب یہ سوچ جو ہے نا, یہ اب سوچ نہیں سکتی کہ یہ کہاں گئے تو گزر گئے. سوچ کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. بندہ سوچ سے اس کو ثابت نہیں کر سکے گا, کہ کیونکہ یہاں تو سمت بھی ختم ہو گئی ہے نا. تو خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کہ سمتیں بھی ختم ہو گئی.
किसे बताए किधर गए थे। मोहम्मद शाहजेब अत्तारी। बापा जान, मेरी आपकी बारगाह में सवाल ये है कि कोई शख्स यानी कि किसी जगह काम करता है और उसका सेठ मालिक उसको मदनी काफ़िले में सफ़र करने की तरकीब यानी कि सुस्ती दिलाता है, यानी कि बोलते हैं कि तरकीब इंशाअल्लाह कल बना लेना, यानी अगले माह बना लेना, तो इसमें क्या सूरत हाल है? और जो नमाज़ें हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें जैसे कि असर की हो गई या मगरिब की हो गई, तो ये तो इसका वक्त इतना नहीं होता है, तो इसमें सुस्ती करा के अक्सर ऐसा होता है कि कज़ा कर हो जाती है ना, तो वो बोलते हैं काम चले अभी 2 मिनट रुक जाओ, 3 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, ऐसे ना फिर नमाज ही कज़ा हो जाती है। बाज़ औक़ात अकेले बिठा के चले जाते हैं, दुकान भी नहीं नमाज छोड़ते। तो माफ नहीं होगी, नमाज तो पढ़नी होगी, काफिला माफ हो जाएगा, मदनी काफिला, क्योंकि वो मामला इजारे का है ना, इजारे पर है, अगर वो इजाजत देता है सेठ उसकी मेहरबानी है, और नहीं देता तो हम जोर जुल्म तो नहीं है ना, उसको बुरा भला बोल सकते हैं कि मेरा सेठ कंजूस है, मेरे को इजाजत नहीं देता तो गुनाह करूंगे। अगर टोटी के साथ भी इजाजत नहीं देता तब भी ठीक है, उसको बुरा भला नहीं बोल सकते कि आपको रखा है काम के लिए, 3 दिन अपने काम का लॉस कैसे करेगा। राम नमाज के लिए वो रोक नहीं सकता, और इसकी वजह से सेठ की वजह से नमाज कज़ा करेगा तो ये मुलाजिम गुनाहगार होगा, इसको छोड़ के नमाज के लिए जाना होगा, चाहे नौकरी छूट जाए, नमाज फर्ज है। प्यारे बापा जान, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है, बाबुल मदीना कराची, कुरंगी नंबर 3.5 से। प्यारे बापा जान, सवाल ये है कि मस्जिद की दरी को पोछे में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? हालांकि वो शहीद हो चुकी है अब वो दरी, अब उस दरी का क्या किया जाए? उनको मस्जिद की दरी में इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए? बहार शरीयत हिस्सा 10वां और जिल्द 2 सफ़ा नंबर 561, मसला नंबर 18। मस्जिद की चटाई, जा नमाज वगैरह अगर बेकार हो और उस मस्जिद के लिए कारआमद ना हो तो जिसने दिया है वो जो चाहे करे उससे इख्तियार है, और मस्जिद वीरान हो गई कि वहां लोग रहे नहीं तो उसका सामान दूसरी मस्जिद को मुंतकिल कर दिया जाए, बल्कि ऐसी मस्जिद मुनहदिम हो जाए, शहीद हो जाए, और अंदेशा हो कि इसका मलबा लोग उठा ले जाएंगे। ये मलबा भी नहीं समझते होंगे, पुराना लफ्ज है। हमें मलबा समझ में आता है, यानी जैसे कि कोई इमारत गिरी है ना, तो अब ये लकड़ियां और सीमेंट की ईंटें और ये छपरे और ये चीजें जो होती है ना, वो ढेर लग जाता है जब कोई दीवार तोड़ते हैं, तो ये सारा जो गिरा हुआ है इसको मलबा बोलते हैं, है ना, मीम लाम बा हा, मलबा। स्क्रैप यानी मलबा, मलबा यानी स्क्रैप, राइट। अच्छा, कि अगर ये मलबा या स्क्रैप है, ये लोग उठा जाएंगे और अपने काम में लाएंगे, कब्जा कर लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बेच मारेंगे, है ना, तो अब उसे भी यानी उस मलबे को भी दूसरी मस्जिद की तरफ मुंतकिल कर देना जायज है। तो वो दरियों का वही मसला सामने आया कि जिसने मस्जिद को दरिया दी थी ये उसको वापस दे दी जाए। अगर अब वो कहता है कि ठीक है इसको इस्तेमाल कर लो या इससे मस्जिद ही में पोछे दे लो, तो उसकी इजाजत मिल जाएगी। बहार शरीयत का ये मसला। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। मोहम्मद सलीम, गुलशन हदीद। सवाल ये है कि अपनी जिस्म की हिफाजत के लिए अगर आदमी किसी पार्क में जाके बाजमात नमाज अदा कर सकता है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करे, और एक्सरसाइज करने के बाद इतना टाइम नहीं होता तो वो अपनी ड्यूटी पे जाना होता है, तो इस बारे में ये पावा जनाब से इसका जवाब लेना चाहिए। अपनी आखिरत की हिफाजत के लिए मस्जिद में नमाज पढ़े बाजमात, आखिरत को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर पार्क में ऐसी जगह जाकर वर्जिश करे जहाँ ये चड्डियाँ पहनने वाले ना हो, बेपर्दियाँ ना हो, औरतें ना हो, और ऐसे पार्क मिलेंगे मुश्किल। पार्क में अगर साफ बिछा के का तो बाद में बिछाएंगे, पहले तो मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे ना। मस्जिद छोड़कर पार्क में नमाज पढ़ने की थोड़ी इजाजत मिलेगी, मस्जिद की जमात लेनी है। और पार्क में ऐसी जगह, ऐसा पार्क हो कि जहाँ औरतों पर पाबंदी हो और
चड्डियां पहनकर राने नंगी लेकर तो करते होते हैं वर्जिशें, पूरा फुल ट्रैक सूट पहन के। खुद पहन लिया ना, दूसरे जो दूसरे सारे फुल ट्रैक पे। अच्छा, ऐसा पार्क है आपके पास? ऐसा होता है पार्क? औरत पर पाबंदी, चड्डियों पर पाबंदी, यानी हाफ पैंट पर पाबंदी। जो एक्सरसाइज करते हैं वो फुल सूट में होते हैं, बाकी किसी को मना तो कोई नहीं कर सकता, कोई आ जाए। यही ना, मना नहीं कर सकता ना, और हम अपनी निगाहों को मना नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पर जाए काहे को जहाँ बदनिगाही हो। मोहम्मद अनस अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान बुखारी। बाबा जान, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि मुँह मुबारक शरीफ को क्या कब्र में ले जा सकते हैं? जी हाँ, वो है ना सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी। मोहम्मद अताउल मुस्तफ़ा अत्तारी, गुलशन हदीस बिन कासिम, कराची। सवाल अर्ज़ ये है कि अगर कोई शख्स किसी को पैसे दे और ये कहे कि ये साहिब मज़ार के लिए चादर ले जाए, अब इस सूरत में वो उसकी रकम कुछ अशिया खरीद कर तकसीम कर दे या उसके लिए फूल खरीद कर साहिब मज़ार पर रख दे, तो अब इस सूरत में कि जो हुक्म दिया गया था साहिल ने, तो क्या वो अदा हो जाएगा? तावान देना पड़ेगा, इतनी रकम उसको देनी पड़ेगी, या वो इजाज़त दे दे आपने कि मैंने तो यूं किया है, और वो बोल दे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं मैंने माफ़ किया, तो फिर चल जाएगा, वरना पैसे देने पड़ेंगे। जबकि जिस शख्स को पैसे दिए गए थे उसके इल्म में ये थे कि बकसरत वहाँ पे चादरें पाई जाती हैं, तो उसको वजात कर देना कि भाई चादरें तो बहुत लगी हुई हैं, तो ये आप ले लीजिए अपने पैसे वापस, या तो फिर इजाज़त दे दें तो मैं वहाँ इनके इसाले सवाब के लिए कुछ बांट दूँ या फूल डाल दूँ उस पर। जज़ाकुमुल्लाह। मोहम्मद दिलशाद अत्तारी, डेरा गाजी खान, पंजाब से, मुदरिस कोर्स के लिए। पापा जान, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई ज़मींदार किसी की ज़मीन हड़प कर लेता है, जिसकी हड़प की गई ज़मीन, अगर वो कुरान मजीद, फुरकान हमीद को उनके पास लेके जाते हैं, तो वो यानी कि जिसने हड़प की है ज़मीन, वो कहता है कि आप ये कुरान यानी कि ले जाओ यहाँ से, तो फिर वो यानी कि उनको धक्के मार के निकाल देते हैं कि ये कुरान को जो वापस भेज देते हैं, क्या ये उनका हुक्म होगा? कुरान की तौहीन नहीं है, कुरान का एहतराम ही है। इन्हें वो खौफज़दा कि मैं कुरान पर हाथ रखकर कैसे झूठ बोलूँगा, ये उस पर हुक्म क्या लगेगा इस पर कि वो गुनाह तो कर रहा है, उसको जैसे आम लोग होते हैं मवाली टाइप के, नहीं बाबा हमारा देखो मस्जिद की तरफ मुंह है, हम झूठ ही बोलता है, तो मस्जिद का एहतराम करते हैं, कुरान नहीं बाबा, हम कुरान नहीं उठाता है, इसका मतलब ये कुरान का एहतराम जानता है, इस पर तो कोई हुक्म नहीं है। अलबत्ता अगर ये झूठ बोलता था, झूठ बोलना है तो गुनाह, अगर किसी का हड़प कर गया है तो आखिरत में है कि वो इसको भुगतेगा, अगर हड़प कर गया तो गुनाहगार ही है, इसको नहीं हड़प करना चाहिए। प्यारे बाबा जान, मेरा सवाल ये है कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसके 10 फ्लोर हैं, तो उसके तमाम जो वाशरूम में किबला रुख हैं और मैं उस पर किराए पे रहता हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में मदनी फुल इरशाद फरमा दें। अब इसमें कि हम इसको इस्तेमाल करते वक्त इस तरह बैठें कि 45 की डिग्री से बाहर निकल जाए, लेकिन वो जो किबले की तरफ मुंह करना या पीठ करना इस्तिंजा करते हुए, तो ये हराम है, तो इसलिए वो 45 डिग्री से बाहर होना चाहिए। 45 के अंदर अंदर बैठा जब भी किबला रुख ही कहलाएगा, या पीठ करना भी कहलाएगा, जहाँ पीठ भी 45 के बाहर ही होनी चाहिए। 90 डिग्री का आसान है, सलाम भेजते ना, तो ये जैसे यहाँ तो ये 90 हो गया, यहाँ की 90 डिग्री ये पता, क्योंकि अगर 45 से 2-4 डिग्री बाहर हुआ भी ना, तो बंदा थोड़ा यूं होता है, थोड़ा यूं टेढ़ा तिरछा होता है, तो बाद में 45 को क्रॉस कर जाता होगा। लेकिन बाबा तो या मकान मालिक से इजाजत लेकर आप बना लें, अपनी जेब में हाथ डालना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, आपसे एक सवाल मैंने पहले भी किया था, देख के हवाले से, गौस पाक वो उनकी ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से। नहीं, 11वीं शरीफ की देख घूमती है जो, वो जी जी कोरंगी के हो, जी जी आज जो मस्जिद कॉलोनी आया हुआ है ना, तो लांडी है ना मस्जिद कॉलोनी, तो वो उसका मुझे हकीकत जाननी थी, क्योंकि घर वाले करते हैं ये, तो मुझे जानना चाह रहा था कि मना करूं मैं घर वालों को, क्या है इसका? असल यार इसमें आमतौर पे होता ही है, जो मेरी मालूमात थोड़ी बहुत हुई कि इसमें जो ये करते हैं ये फासिक होते हैं, कोई बाशरा या उलमा अहले सुन्नत होते नहीं। मैंने कभी देखा, लेकिन मुझे एक अंदाजा है ये किस तरह के लोग होते होंगे। फिर औरतों के मर्दों के हुजूम, बेपर्दगी और ये सब, तो ये इसको मतलब ये कि जो घूम जाती है और ये सब है,
देख, तो ये सब उसको इस्तिदराज है। ये जी इस्तिदराज समझते हैं। फासिक से ऐसी बात सादिर हो जो आदतन मुहाल हो तो वो इस्तिदराज कहलाता है। काफिर से सादिर हो या फासिक से, और वली से सादिर हो तो ये करामत कहलाती है। तो आम मोमिन से सादिर हो, जाहिर हो, उसको कहेंगे मऊनत। तो ये इस्तिदराज के हुक्म में आएगा। अगर ये फासिकीन ऐसा करते हैं तो जब वो दज्जाल आएगा, दज्जाल, तो वो शुबदे दिखाएगा, वो मी बरसाएगा, सब्जा उगाएगा। तो ये है तो हैरत में आने वाली बात है ना। बाद लोग समझेंगे कि हम तो बहुत पक्के हैं, खाली अब तो देखने के लिए चलते हैं, और वो उसको देखकर फंस जाएंगे कि यही तो खुदा है, देखो कैसा कर रहा है। तो इसलिए इस तरह के लोगों को देखना भी नहीं चाहिए कि ऐसों की अकीदत अगर दिल में बैठ गई तो कहीं ईमान खतरे में ना पड़ जाए, मुतासिर होगा तो। जैसे बाद ऐसे पीर होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते और बोलते हैं कि हम तो नमाज कभी मक्के में पढ़ते हैं, कभी मदीने पढ़ते हैं, और शाम को बगदाद जाते हैं, सुबह को अजमेर जाते हैं। अब ऐसे पीरों से अपनी तो भाई दूरी अच्छी है। जो नमाज पढ़ता आदमी, सबको पता है नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अब पीर साहब यहाँ वो तक दिन हो रहा है और इसमें झूम रहे, पीर साहब ने नमाज नहीं पढ़ी, चुप चुप। पीर साहब अभी अजमेर शरीफ में तशरीफ फरमा है और पीर साहब अभी क्या वो मस्ती में, अजमेर शरीफ में नमाज हो रही है, चुप। तो ये थोड़ी मतलब चलेगा। वो तो बस यार दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आजकल जहालत का दौर दूर है, इसलिए मतलब ये कि ऐसे तमाशे जो हैं ये देखने नहीं चाहिए कि इनकी खामखा अकीदत दिल में बैठेगी। बाज़ औक़ात ये होते हैं लगे दम ते मिटे गम, दुनिया कमावे खावे हम, और डी कर रहे होते हैं और बंदा उसमें फंस जाता है, फिर कश लगा रहे होते हैं। मोहम्मद उसामा अत्तारी, जामियतुल मदीना, बाबुल मदीना, फैज़ान मदीना, दर्जा सानी है। आप फरमाते कि इयादत वगैरह, ताज़ियत वगैरह में जाते थे, तो बाबा जी आप अपनी इतनी मसरूफियात में से मुताला भी रखते थे और फिर इसके लिए भी इतना वक्त किस तरह इनायत फरमाते थे? पापा जी ने इसकी रहनुमाई फरमाए। मेरा तो अल्लाह का कितना बड़ा आपको पता है, और मेरी तो दिन में रोज पता नहीं कितने कितने मैयत हो जाए, कितने मरीज, गिनती होना मुश्किल। तो मैं शुरू में तो वाकई इधर गया उधर गया, वो मतलब जाता आता रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद पीछे हट गया, क्या करूं। अच्छा निकाहें भी इतनी, अब निकाह भी पढ़ाऊं, वलीमा भी इसका खाऊं, और इज्तिमा जिक्र नाक में भी जाऊं, ये 3 काम आते थे मेरे जिम्मे। तो फिर इसमें भी मैं पीछे हट गया। जब तक हो सका मैंने किया। जनाजे भी बहुत पढ़ाए मैंने, इतने कम लोग होंगे जिन्होंने इतने जनाजे पढ़ाए हों, क्योंकि जो भी जनाजा पढ़ा था आमतौर पर मस्जिद तक महदूद होता है, तो उसकी मस्जिद में जो मैयत आई या उसकी रेंज में जो उसको पढ़ाता होगा। अब बात जो प्रोफेशन होता है समाजी इदारों के, वो हो सकता है मुझसे बढ़ जाए, लेकिन जनरल आदमी मुझसे बढ़ नहीं सके। शायद ने इतने जनाजे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी जहाँ जहाँ मुमकिन हो जाना तो चाहिए, इससे सवाब मिलता है, अच्छी नीयतों के साथ मदनी काम भी बढ़ता है। सर जनाजा पढ़ने में देर लगती कितनी है? मरीज की इयादत करने किसी इलाके में जाएंगे तो कितनी देर लगती है। मेरे ऐसा जाता था ना, तो फिर क्या होता था पता है, मरीज को तो देख लिया, हमारे घर 2 कदम, हमारे घर आके बस आप खाली दरवाजे के पास खड़े हो दुआ कर दो, मेरी दादी को दम कर दो। तो मैं तो बाज़ इलाकों में गया हूँ तो बिला मुबालगा पूरी रात निकली है, लांडी कोरंगी औरंगी, इस सिरे पर उस सिरे पर। तो मेरे जैसा पीछे हटे ना तो वो उसकी मजबूरी समझदार को समझ में आ जाए, लेकिन बसों को नहीं आती होगी, क्या करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरसब्ज़ इस गुलज़ार